Hello everyone, myself Rehan Khan, a final year medico in a government medical college in Karnataka. So in today's video, I'll be discussing how you can improve your score for NEET 2026 exam. The video will focus basically on the NEET aspirants including freshers and droppers. So the mode of the video will be some sort of English and Hindi both, so that it can encompass all sort of viewers. So without wasting the time, let's start today's video. तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है इम्प्रूव नीट स्कोर फॉर नीट 2026. So at this point of time we would be having two sort of students. Number one, first would be let us make it a bit lighter. Freshers and droppers. The video will be including for both including freshers and droppers. So यू नीड नॉट वरी अबाउट कि यार खाली फ्रेशर्स के लिए डिस्कस किया है या खाली ड्रॉपर्स के लिए डिस्कस किया है. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ द ग्रुप्स, बोथ फ्रेशर्स एंड ड्रॉपर्स. फाइन. So at this point of time I'll consider that we have three groups of students. Number one, those having score below 400. Second, between 400 and 600. And third one, above 600. Fine. So I'll be discussing all the points encompassing these three categories. Firstly, like the previous paper of NEET 2025, we should make a note that this time also we should expect the paper to be bit difficult. Difficulty would be more, and there would be more calculate. Other than formula based, we will have more conceptual questions, conceptual and long questions in physics, and AR type in bio, assertion and reasons. Bio. So before starting our discussion, we should make a note of all these points. There will be more difficulty. Question will be more conceptual and long rather than formula based question. Earlier जैसे पूछ लेते थे कि acceleration का application लगा के एक दो equation of motion लगा के we would used to get some answers, but at this time either you'll have to integrate, they'll give you an equation in terms of displacement, you will have to differentiate it, and then you'll get velocity, then again you will differentiate and you will get acceleration, then you can use it in terms of force. So we are expecting to have these type of question this time, and more assertion and reason types of question in biology. Now let's start the discussion regarding all the categories. Number one, for students who are scoring below 400. See, for students below 400, you have not completed your syllabus. You are not completed syllabus properly. नाउ व्हाट डज इट मीन? मतलब आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपने ना तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, ना आपने रिवीजन करा है. यू हैव स्कैटर्ड कंटेंट हियर एंड देयर, और आपके पास अभी कंप्लीट करने को बहुत सारा बैकलॉग होगा. बैकलॉग माइट बी प्रेजेंट, माइट बी प्रेजेंट. ये दो चीजें हैं जो मैं मान के चलता हूं बिलो 400 स्टूडेंट्स के साथ है. और पुअर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, poor conceptual clarity due to lack of question practice. Lack of question practice. See, I can make this video in a very short way, but I just want to discuss in it in a holistic way with you so that you can get a fair idea. Depending on the category you are following, you can start your prep. So सबसे पहले what you have to do, आपको करना क्या है? Number one, complete the syllabus. Complete the syllabus. Now the question is, do either we have to do it from online coaching or an offline coaching? Regarding this, I'll prepare another video. But for meanwhile, if you are in an offline center, go with their schedule. If you are in an online coaching, go with their schedule. Complete the syllabus. Start solving questions daily. Start solving questions daily in time bound fashion. Time bound
passion. What does this time bound means? Take 90 questions of bio, 90 questions of bio, and try to solve them in 60 minutes. And do same thing with 60 questions of physics, and try to solve it in 60 minutes. In the initial days, you can, while starting, you can also take 45 questions. You can also take 45 question of physics in 60 minutes, and same 60 to 70 questions of chemistry in 60 minutes. Fine. You have to solve in this way. And daily NCERT reading. No matter how tough the paper would come, but there would be some questions directly from NCERT. So in any way you cannot ignore NCERT. तो नंबर वन, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालनी है, और आपको रोज एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा और आपकी स्ट्रॉन्ग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपके नंबर ऑफ स्कोर्स भी इंप्रूव होना स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो 400 से लेकर 600 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ रखा है, बट आपका जो है स्कैटर्ड कंटेंट है, यू नो समथिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, समथिंग about all the subjects, बट पुअर कमांड, आपकी कमांड नहीं है पूरे से अभी सिलेबस पे, पुअर कमांड एज अ होल। कुछ टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं और कुछ टॉपिक आपने पुअर तरीके से याद कर रखे हैं, तो वहां पे आपको अब क्या करना है, आपको ट्राई टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर ऐसा है कि आपकी कोई टॉपिक है जिसमें आपके वीक पार्ट है, आपके नंबर नहीं आते, उसमें उन सबको इंप्रूव करने का स्टार्ट कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब आपने सिलेबस कर रखा है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको स्पेस्ड रेपिटेशन करना है, और आपको एक्टिव रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉल। आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें, क्योंकि जो मेजर रीज़न है आपके नंबर नहीं आ रहे वो यही है कि आपका पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने कुछ तो पढ़ रखा है, इसलिए यही रीज़न है कि आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन जो 600 क्रॉस करने के लिए आपको होलिस्टिक सब्जेक्ट सिलेबस दिमाग में होना होता है ना, वो आपका नहीं हो पाता है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये पार्ट टेस्ट या कंप्लीट टेस्ट के लिए नहीं है, आप बेसिकली इसको अपनी ओवरऑल प्रेप में इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर 4 चैप्टर लिया हो चुके हैं आपके तो उसके रेस्पेक्ट में, और कंप्लीट सिलेबस हो चुका है तो उसके रेस्पेक्ट में। और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आती है मेरी अबव 600। और मैं ये मान के चलता हूँ जो लोग अबव 600 या जो भी लोग टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग एक अच्छी कोचिंग के डिसेंट डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है रैंडम क्वेश्चन आप कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3 घंटे बैठते हैं, ओएमआर फिल करते हैं प्रॉपर, और इसी तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो अब जो अबव 600 वाले बच्चे हैं उनको ये याद रखना है कि आपके मिनिमम या लेस नंबर ऑफ वीक जोन्स होंगे, लेस नंबर ऑफ वीक जोन्स होंगे, और आपको उन्हीं वीक जोन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई देम एंड एक्ट ऑन, एक्ट ऑन देम। आपको उन्हीं जोन को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर काम करना है, और जो कुछ आपके वीक मॉडरेट टॉपिक्स है आपको उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। मॉडरेट भी आपके कम होंगे, मॉडरेट जो हैं वो भी आपके लेस है नंबर में, तो आपको मॉडरेट और वीक टॉपिक्स को दोनों को स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट करना है, स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट करना है आपको अपने मॉडरेट और वीक टॉपिक्स को। आपके बहुत, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यू शुड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स, नो सिली मिस्टेक। ये चीज़ तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। बी केयरफुल विथ ओएमआर फिलिंग, विथ ओएमआर फिलिंग। अब आप बोलोगे एक दो टेस्ट में हो जाए तो क्या है, नहीं, आपको अपना पैटर्न इस तरह से इंप्रूव करना है कि आप कितने भी टेस्ट दे लो आप इस तरह की गलतियां ना करो। तो ये 3 कैटेगरी थी जिसमें मैंने प्रेजेंट नीट एस्पिरेंट्स को डिवाइड करा है।
मैं एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ ताकि अगर आपको इसमें नहीं भी समझ आया तो अब आप समझ सकें। बिलो 400, बिटवीन 400 टू 600 एंड 6 अबव 600। अब जो बच्चे बिलो 400 है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अभी तक बहुत कम सिलेबस किया है, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कम किए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है और आपको एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करनी है। 400 से 600 रेंज वाले बच्चे हैं, उनका मॉडरेट सा सिलेबस हो रखा है लेकिन वो स्कैटर्ड है, तो आपको वो जो छोटे मोटे पॉकेट्स ऑफ वीक टॉपिक्स छूटे हैं, आपको उनको कवर करना है और उनको अपना स्ट्रांग बनाना है। और जो अबव 600 वाले बच्चे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत कम टॉपिक है जो आपके वीक होंगे। अब आपको उन पे काम करके उनको अपने स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है, क्योंकि आपके मॉडरेट टॉपिक्स भी कम है और इसके बाद आपके वीक टॉपिक्स भी खत्म हो जाएंगे, तो ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दी कि आपको किसी भी तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ओएमआर फिलिंग। और किस तरह से ओएमआर फिल करनी है और क्या पैटर्न होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी था, थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपके नीट एग्जाम में किसी भी तरह की प्रिपरेशन में आपको इशू आता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल गिव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।